Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. I'm Riya Sai, ma'am. What about you? What about you? I'm also fine. And स्टूडेंट आज हम सभी को 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपनी। आई होप आप सभी लोग फ्लड एंड ड्राउट इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ के आए होंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अभी हम सभी लोग सबसे पहले अपनी 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Yes, ma'am. यस तो 9.1 एंड 9.2 हम दोनों ही कर चुके थे। आज हमें क्या करना है 9.3। तो देखिए फर्स्ट है हमारा व्हाट इज अ फ्लड एंड हाउ इज इट काउज्ड। तो फ्लड क्या है और ये कैसे आता है, कौन बताएगा इसका आंसर? यस सौरभ, नाउ यू टेल। Flood occurs when there is a major overflow of water over river bank and surrounding areas. Floods can be due heavy rainfall, cloud burst, rapid melting of snow in mountains. Okay, very good. Yes, Niharika, now you tell. What is a flood and how is it caused? Flood occur when there is a major overflow water over river banks and surrounding areas. Flood can due to heavy rainfall, cloud dust, rapid melting of snow in mountains, landslide, and breaking in river embankment. Yes, Savitri, now you tell. Ma'am, floods occur when there is a major overflow of water over river banks and surrounding area. Floods can be due to heavy rainfall, cold burst, repeat melting of snow in mountains, landslide, and breaking of river embankment. Yes, Anil, now you tell. What is a flood and how is it caused? Ma'am, flood occurs when there is a major overflow of water over river bank and surrounding areas. Floods can be due to heavy rainfall, cloud burst, rapid melting of snow in mountains, landslides, and breaking of river embankments. चलिए तो अभी हम देखते हैं बुक ए में इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या है फ्लड और कैसे आता है, व्हाट इज अ फ्लड एंड हाउ इज इट काउज्ड। तो यस, हमारा फ्लड वाला टॉपिक कहाँ है, ये रहा। Yes, so flood occur when there is a major overflow of water over river banks and surrounding areas, and floods can be due to heavy rainfall, cloudburst, rapid melting of snow in mountain, landslide, breaking of river embankment. तो ये सारे ही कारण हैं जो फ्लड्स के आने के लिए ये सारे ऐसे रीजन दिए हुए हैं जिनके कारण फ्लड आता है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the drought and how is it caused? Yes, Shanvika, now you tell. Ma'am, drought is that where no water. The extension of water is called drought. Yes. Ma'am, in the place where is no water is called drought. Ma'am, drought is caused when there is no sign of rain for many years or many months. Very good, Shanvika. Yes, Ruchi, now you tell. What is the drought and how is it caused? The shortage of water in air due to less or no rainfall occurs. A drought occurs due to absence of waterfall for months every year, and result is crop fertile and separating and breed. Okay, yes, Aman, now you tell. What is the drought and how is it caused? Ma'am, a shortage of water in an area due to less or no rainfall is called drought. A drought occurs due to the absence of rainfall for months, even years.
even years. Very good, Aman. Yes, Anupriya, now you tell beta. Ma'am, shortage of water in an area due to less or no rainfall is called drought. A drought occurs due to absence of rainfall for months, even years, and result in crop failure, starvation, and death. Okay, very good. Yes, Atul, now you tell. Shortage of water in an area due to lack of no rainfall is called dust. A dust occur due to of rainfall for month every year. यस ओके वेल ट्राइड यस और चलिए तो एक बार हम आते हैं बुक ए पे। तो ड्राउट के बारे में क्या बताया है हमें, ड्राउट क्या है और कैसे आता है। तो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन एरिया ड्यू टू लेस और नो रेनफॉल इज कॉल्ड ड्राउट। तो जहां पर भी पानी की कमी होती है या फिर बारिश ही नहीं होती उस एरिया को हम क्या कहते हैं, ड्राउट प्रोन एरिया, यानी कि सूखा पीड़ित एरिया। चलिए तो अब ये ड्राउट आता कैसे है। तो ए ड्राउट अकर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेनफॉल फॉर मंथ्स इवन ईयर्स एंड रिजल्ट इन क्रॉप फेलियर, स्टार्वेशन एंड डेथ। तो ड्राउट कैसे आता है, जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती, काफी दिनों तक, काफी महीनों तक, एंड इसका रिजल्ट क्या होता है, क्रॉप फेलर, कोई फसलें नहीं उग पाती हैं यहाँ पर, स्टार्वेशन, अगर फसलें नहीं होंगी तो भूखमरी आएगी, एंड जब लोग भूखे रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये सारे ही रिजल्ट होते हैं ड्राउट के बाद। ओके यस मैम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ये दोनों कर लेंगे सभी। Yes, अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन अ फ्लड और अ ड्राउट दैट हैज रिसेंटली अफेक्टेड अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको ड्राउट एंड फ्लड इन दोनों के बारे में स्टडी करनी है, कौन से एरिया में आया था, कहाँ पर आया था और उससे कितना नुकसान हुआ है लोगों को। तो इसके बारे में अब आपको सर्च करना है, ड्राउट एंड फ्लड दोनों ही। एंड लास्ट जो होमवर्क था, बहुत सारे बच्चों ने ना ऊपर वाला ये ब्लैंक छोड़ दिया है। अभी फिलहाल मैं उन स्टूडेंट के नाम भी बताऊंगी किस किसने ब्लैंक छोड़ा है। मैम नहीं छोड़े, ये दोनों जो कॉलम थे ना इसे ब्लैंक छोड़ दिया है। मैम नहीं छोड़े हैं, भी नहीं छोड़े। सभी ने नहीं छोड़ा है, कुछ बच्चों ने छोड़ा है, मैंने सबका नाम नहीं लिया है, कुछ बच्चों ने छोड़ा है। तो ये पूरा कंप्लीट करना है। एंड दूसरा जो आपका आज का होमवर्क है ना, ये इसमें आपको सर्च करना है कहाँ पर ड्राउट आया था, पूरे वर्ल्ड के बारे में पूछा है अभी रिसेंटली, यानी कि फिलहाल में ही कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर फ्लड आया था, कहाँ पर ड्राउट आया था। फिलहाल जो फ्लड से अफेक्टेड एरिया है वो तो हमारा बिहार ही है, समस्तीपुर बिहार, वहां पर सबसे ज्यादा फ्लड आता है। तो अभी आपको रिसेंटली में ये नोट डाउन करना है कि कहाँ पर फ्लड आया था एंड कहाँ पर ड्राउट हुआ था और इससे क्या कंडीशन आई थी। ओके यस मैम। जैसे देखिए हमें आप हेल्प करते हैं कि लिखना क्या है आपको, जैसे हमें बुक ए में बताया था। और मैम ये भी लिखना है कि बचे थे मैम, कितने लोगों को गवर्नमेंट ने बचाया। यस गवर्नमेंट का रिलीफ वर्क भी बताना है, राहत कार्य क्या किया है गवर्नमेंट ने हमारी लोगों को बचाने के लिए। चलिए तो यहाँ पर जैसे हमें दिया है ना कि 16 से 17 जून को क्लाउड बस्ट हुआ था, हैवी रेन आई थी, लैंडस्लाइड हुआ था उत्तराखंड में, और क्या हुआ था, बहुत सारे एरिया में बाढ़ आ गई थी। तो ऐसे ही आपको अभी जो स्टार्टिंग अभी फिलहाल रिसेंटली हुआ हो सबसे लास्ट में, अभी आपको ढूंढना है कहाँ पर फ्लड आया था और कितना नुकसान हुआ था वहां पर। और ऐसे ही हमें इसके बारे में बताया ड्राउट, तो ये हमारे इंडिया का दिया है, हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं और पर इससे भी पहले आया हो अभी, यानी कि फिलहाल में 1 या 2 साल पहले। तो आपको उसके बारे में नोट डाउन करना है। ओके यस मैम। जैसे ये हमें दिया है 2000 से 2016, फिलहाल 2-3 साल लगातार यहाँ पर सूखा पड़ा था क्योंकि बारिश नहीं आई थी कंटिन्यू 2-3 सालों तक। तो इसलिए यहाँ पर देखिए 3 ये
3-4 सालों को कवर करके बताया। तो हम आप फिलहाल आपको ये नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, रिसेंट में जहां पर भी हुआ था हमारे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में। ओके यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। चलिए, तो आज का आपका होमवर्क है ये चैप्टर। बेटा आप लोग सभी पढ़ चुके हैं, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। क्योंकि मैंने आपको बताया है ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको इसे आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ना है। फिलहाल आपको याद ही होगा, मैंने आपको 7th क्लास की बुक का एक पेज दिखाया था, आपको एक क्लास में शो किया था। यस मैम। तो आपको पता ही लग गया होगा कि अब अभी इन टॉपिक्स को आपको आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ना है। जान गए होंगे ना आप सभी लोग? यस मैम। इसलिए अगर आपको लगता है कोई डाउट है या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लोगों को ना समझ आया हो, तो आप उसे पूछ सकते हैं। नो समझ आ मैम। गया सभी को? यस मैम। अर्थक्वेक, सुनामी, सब कुछ पढ़ चुके हैं ना हम लोग? सभी को अच्छी तरह समझ आ चुका है? यस मैम। यस मैम। ये सारी चीजें अभी आपको 7th क्लास में एसएसटी में पढ़नी है, सोशल साइंस में। ये सारी चीजें फिर से साइंस में नहीं, सोशल साइंस में। तो ये आपको उसमें सारी चीजें याद रखनी होंगी। वोल्केनो, अर्थक्वेक कैसे आता है, क्या होता है, क्यों आता है, कहाँ पर आता है, ये सारी चीजें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। एंड अगर आप लोग याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। साइक्लोन के बारे में भी पढ़ना है 7th क्लास में। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो कर लेंगे आप सभी। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आज का ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग समझ ही गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। देखिए इसमें क्या बोला है, आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है फ्लड एंड ड्राउट के बारे में, जो रिसेंटली अभी हुई हो, हाल फिलहाल में ही, और इसने हमारे वर्ल्ड के कौन से पार्ट को अफेक्ट किया है, कौन से पार्ट को प्रभावित किया है, कौन सा ऐसा देश था, कौन सा ऐसा राज्य था, कौन सा ऐसा पार्ट था जो अफेक्टेड रहा, एंड लिस्ट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रेस्क्यू पीपल। और गवर्नमेंट ने रेस्क्यू के लिए, बचाने के लिए, राहत कार्य के रूप में क्या क्या काम किए इस डिजास्टर के आने के बाद। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। ओके यस मैम। चलिए, तो अब आप सभी को एक बार फिर से ज्वाइन करना है। मैं यहाँ से मीटिंग एंड करती हूँ। Yes, ma'am. ओके, तो अभी फिलहाल इस क्लास के लिए गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. गुड बाय।